اینٹی کرپشن ملتان ان ایکشن زمین کے فراڈ میں ملوث 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ اینٹی کرپشن حکام نے کارروائی کرتے ہوئے 3 ملزمان گرفتار کر لیے ہیں۔ گرفتار ملزمان میں پٹواری ظفر اقبال، اسٹامپ فروش فرقان اور کیسر جمشید شامل ہیں۔ پٹواری ظفر اقبال نے زمین کی ملکیت کی جعلی رپورٹ تیار کی۔ ملزم نے 10 مرلہ زمین غیر متعلقہ شخص کے نام کرائی۔ ملزمان فرقان اور کیسر جمشید بھی زمین کے فراڈ میں ملوث ہیں۔ ملزمان نے شہری محمد صفدر کی زمین بوگس اسٹامپ پیپرز کی مدد سے اپنے نام کروائی۔ گرفتار ملزمان سے تحقیقات جاری ہیں۔ اینٹی کرپشن حکام نے کارروائی کرتے ہوئے 3 ملزمان گرفتار کر لیے ہیں۔ گرفتار ملزمان میں پٹواری ظفر اقبال، اسٹامپ فروش فرقان اور کیسر جمشید شامل ہیں۔ پٹواری ظفر اقبال نے زمین کی ملکیت کی جعلی رپورٹ تیار کی۔ ملزم نے 10 مرلہ زمین غیر متعلقہ شخص کے نام کرائی۔ ملزمان فرقان اور کیسر بھی زمین کے فراڈ میں ملوث ہیں۔ ابھی آپ کو بریکنگ دیں، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ ربیع الاول 19 اکتوبر بروز منگل ہوگی۔ اہم خبر جس کے متعلق ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے۔ ربیع الاول 19 اکتوبر بروز منگل ہوگی۔ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ ربیع الاول 19 اکتوبر بروز منگل کو ہوگی۔ روہی دیکھنے والوں کو ربیع الاول کا چاند روہی کی طرف سے مبارک۔ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، جبکہ ربیع الاول 19 اکتوبر بروز منگل کو ہوگی۔ سوہنا آیا تے سج کے نے گلیاں بازار، ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا۔ جنوبی پنجاب کے باسیوں کو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ربیع الاول کی ڈھیروں مبارکباد۔ جشن آمد رسول آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، 12 ربیع الاول 19 اکتوبر بروز منگل کو ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، 12 ربیع الاول 19 اکتوبر بروز منگل کو ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں، 12 ربیع الاول 19 اکتوبر بروز منگل کو ہوگی۔ جنوبی پنجاب کے باسیوں کو ربیع الاول کا چاند مبارک ہو۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سایت پہ لاکھوں سلام۔ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، 12 ربیع الاول بروز منگل کو ہوگی۔ روہی نیوز فراڈ سے متعلق مزید حقائق سامنے لے آیا۔ طاہر حسین نے لوگوں کو بیرون ممالک نوکری کا جھانسا دے کر کروڑوں روپے بٹورے۔ ریسکیو اہلکاروں نے لالچ میں آ کر گاڑیاں اور زمینیں کا معاملہ روہی مزید حقائق سامنے لے آیا۔ طاہر حسین نے کئی لوگوں کو بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دے رکھا تھا۔ اس نے اپنی فیس بک پر بیرون ملک نوکری کی پوسٹ بھی لگائی۔ طاہر شاہ کچھ عرصہ قبل دبئی سے واپس آیا، ریسکیو اہلکاروں کو ویب سائٹ بھی بنا کر دی، فی اہلکار 20 سے 30 ہزار روپے وصول بھی کیے۔ طاہر حسین کچھ عرصے تک اہلکاروں کو منافع دیتا رہا۔ بعد ازاں منافع کے لالچ میں لوگوں نے بڑی رقوم اس کے حوالے کر دیں، حتیٰ کہ ریسکیو اہلکاروں نے گاڑیاں بھی بیچ ڈالیں۔ بعض اہلکاروں کی جانب سے زمین بیچنے کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ بہاولپور میں خاتون 3 بچوں کے ہمراہ ریلوے اسٹیشن پر بے یار و مددگار پڑی رہی۔ ذکیہ بی بی کا کہنا تھا کہ اس شوہر نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا۔ شوہر نے جان سے مارنے کی کوشش کی۔ اعلیٰ حکام رہائش فراہم کریں اور انصاف دیں۔ مرندا شروع برداشت کی ہوں جانو مرندا پہ ہاتھ تیزاب چھٹیا، چھری رکھی اس کی تے نشان ہے۔ بالیں قرآن دیتے جو چھوڑ ساری ماں کو، بالیں کو ڈاڈھا مارے اور جی میں اتوں میں نکتی ہوں بہاولپور میں اسٹیشن پہ آئی دیکھی ہوں
मैं कुछ समझ नहीं आती बगैर पैसे दे कितों खावां केड़े वजां क्या करा शदत करंदा है मरेंदा है शुरू कन बर्दाश्त कीती आईयां हुण जानू मरंदा पे हाथ तेजाब छटिया छुरी रखी इस गिच्ची ते निशान है बालें कुरान दिते जो छोड़ साडी मां को बालें को डाढ़ा मारे पर जी मैं उठूं मैं निकती बहावलपुर में स्टेशन पे आई देखिया मैं कुछ समझ नहीं आती बगैर पैसे दे कितों खावां केड़े वजां कोरोना वायरस के फैलाव में वाज़ेह कमी एनसीओसी का तालीमी इदारों को मामूल के मुताबिक खोलने की इजाजत देने का फैसला वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि कोरोना का फैलाव कम हो गया है 11 अक्टूबर से तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोले जाएंगे। अहम खबर जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं एनसीओसी के अहम फैसले। एनसीओसी ने मामूल के मुताबिक तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया है। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि कोरोना का फैलाव कम हो गया है। 11 अक्टूबर से तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोले जाएंगे। उन्होंने अपने ये ट्वीट में ये बात कही है। एनसीओसी का तालीमी इदारों को मामूल के मुताबिक खोलने का फैसला। महकमा सेहत की नहली मियांवाली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इंसिनरेटर मशीन 7 माह से खराब है। फुजला सरगोदा और भक्कर बेचा जाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इन्फेक्शन वेस्ट जानलेवा वबाई अमराज का सबब बन सकता है। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। डीएचक्यू अस्पताल की इंसिनरेटर मशीन 7 माह से खराब है। डीएचक्यू अस्पताल से रोजाना की बुनियाद पर 40 से 50 जबकि डीएचक्यू रूरल हेल्थ सेंटर और बुनियादी मरकज सेहत से 120 किलो से ज्यादा तिब्बी फजला जमा होता है। इसको जायल करने के लिए सरगोदा और भक्कर भिजवाया जाता है। तो ये इंसिनरेटर मेरे से पहले ख़राब था। मेरे से पहले एमएस साहब रिटर्न में दे चुके हैं कि इसका रिपेयर कराएं या इसको रिप्लेस करें। तो रिपेयर के लिए हमारे पास एक इदारा है बर्क, उन्होंने भी इसको देखा मल्टीपल टाइम। मैंने भी अपने दौर में कंप्लेंट्स की तो वो उन्होंने आके चेक किया। इस तरह दूसरे फोरम पे जो इन्फेक्शस कंट्रोल का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उनको मल्टीपल लेटर मैंने लिखे हैं कि इसका या तो रिपेयर करें या इसको रिप्लेस करें। एमएसडीएचक्यू डॉक्टर मीर अहमद खान ने बताया कि इंसिनरेटर मशीन अपनी तबी उम्र पूरी कर चुकी है। जितने अखराजात ठीक कराने में आते हैं उतने पैसों में नई मशीन इंस्टॉल हो जाएगी। इसको नया लगाना पड़ेगा। जो इसकी कास्ट है हमारा जो चल रहा है इसकी रिपेयर की कास्ट उतनी बनती है जितनी नए के लगाने की है। ये अपनी लाइफ कंप्लीट कर चुका है। तो ये आला हुकाम के नोटिस में इंशाल्लाह होप करते हैं कि ये जल्दी इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा नया इंसिनरेटर। एमएस ने मजीद बताया कि ताहाल महकमा हेल्थ पंजाब की जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियांवाली। राजनपुर में नर्सों का डॉक्टर्स के नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाज काम छोड़ दिया। एमएस ऑफिस के सामने मुजाहिरा। नर्सों का कहना है कि मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में तैनात नर्सों ने डॉक्टर्स नैन और ड्यूटी पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहरे में कसीर तादाद में यंग और स्टाफ नर्सेस ने शिरकत की। मुजाहरीन ने मुतालबात के हक में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। नर्सेस का कहना था कि उन्हें डॉक्टर्स की जानिब से हतकमेज रवैये का सामना है जबकि ड्यूटी रोस्टर किसी भी वक्त तब्दील कर दिया जाता है। मुजाहरीन का कहना था कि मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का दायराकार वसी कर दिया जाएगा। अब्बासिया थिएटर बहावलपुर के मालिक ढुड्डी शाह और मुल्तान के प्रोड्यूसर असलम शहजाद का मबैन 1 साल का होने वाला मुआहिदा 1 हफ्ते भी न चल सका। कसीर सरमाइश से तैयार करदा थिएटर के सेट और कीमती सामान अब्बासिया थिएटर के मालिक से वापस न मिलने पर फनकार अपने बच्चों के हमरा उस्मान गनी रोड पर एहतजाज कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बहावलपुर अब्बासिया थिएटर का 1 साल का मुआहिदा 1 हफ्ते भी ना चल सका और उसके जो डायरेक्टर थे प्रोड्यूसर वो इस वक्त सदर आर्टिस्ट एसोसिएशन रमजान शहजाद के घर के बाहर जो है वो एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। हमारे हमरा ही मौजूद होंगे। क्या कहेंगे, किस तरह का मुआहिदा हुआ और ये मुआहिदा क्यों कैंसिल हुआ? उनके साथ हमारा एग्रीमेंट है 2 लाख रुपए सिक्योरिटी, 1 लाख रुपए महीने का किराया और जो वहाँ पे सेट लगाया उसके पैसे हमने लगाने, बिजली का बिल हमने भरना था, वहाँ के मुलाजमों की तनख्वाहें हमारे जिम्मे थी। हमने उनको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी दिया, 1 लाख रुपए महीना उनको उसका किराया दिया है। तमाम डेकोरेशन वहाँ पे सेट पे हमारे जो अखराजात हुए हैं, अगर वो थिएटर में लालच में आ गए कि हम इसको चलाएंगे तो हमारे जो लगे हुए पैसे हैं वो हमें वापस दिए जाएं। साथ का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। सदर आर्टिस्ट एसोसिएशन रमजान शहजाद भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे। इनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, अगर वो प्यार मोहब्बत से भाईचारे से इनके मामलात को सॉल्व करते हैं तो वेल एंड गुड। कोई हमारी लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। इनका लगा हुआ पैसा 1 साल का एग्रीमेंट था
तो उन्होंने एक हफ्ते में जब खत्म कर दिया, इनके पैसे वापस कर दें, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हक है वो दिलवा कर जो है वो रहेंगे, और इनका इस हवाले से ये कहना है कि इंतजामिया को जो थिएटर पर लगा हुआ पैसा है वो वापस दिलवाए, वरना ये अपने एहतजाज का दायरा कार जो है वो बस ही कर। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क में गुर्बत और महंगाई बढ़ती जा रही है। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के ताजिर परेशान हैं। चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ख्वाजा सुलेमान ने बढ़ती महंगाई और ताजिरों पर लगने वाले टैक्सेस पर अगले हफ्ते में एहतजाज की कॉल दे दी है। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के ताजिर परेशान हैं। मुल्क में गुर्बत और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी ने बढ़ती महंगाई और ताजिरों पर लगने वाले टैक्सेस पर अगले हफ्ते एहतजाज की कॉल दे दी है। मुल्तान की गल्ला मंडी में शैखरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। दालें 100 से 200 और चावल 150 से 200 रुपए फी मन महंगे हो गए हैं। कीमतों में बड़े इजाफे पर शहरी और दुकानदार परेशान हो गए हैं। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। गल्ला मंडी में अशिया खुर्दोनोश महंगी हो गई। दालों की कीमत में 100 से 200 रुपए और चावल की कीमत में 150 से 200 रुपए फी मन इजाफा हो गया। दाल मूंग फी मन 4200 रुपए से बढ़कर 4400 रुपए, दाल चना 4800 रुपए से बढ़कर 5000 रुपए फी मन हो गई। दाल मसूद 6000 रुपए से बढ़कर 6200, दाल माश 7800 से बढ़कर 8000 रुपए फी मन हो गई। अब गला मंडी में हमने रात को पूछा था, दाल चना 4000 रुपए मन थी, अब 4800 रुपए हो गई। अब एक चीज बड़ी गला मंडी में 800 रुपए मन बढ़ जाती है, उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इंतजामिया कहाँ सोई हुई है? 800 रुपए मन दुकानदार ने, गला मंडी के दुकानदार ने अपनी मर्जी से बढ़ा दिया। एक स्टॉक पड़ा हुआ था, एक दुकानदार के पास अगर 1000 गट्टू पड़ा है तो उसने 4000 को 4800 कर दिया। इंतजामिया कहाँ है? चना सफेद बारीक 5600 से बढ़कर 5800, चना सफेद मोटा 5450 से बढ़कर 6650, बेसन 4800 से बढ़कर 5000 रुपए फी मन हो गया। कायनात कच्ची अव्वल दर्जा की कीमत 4750 से बढ़कर 4900 रुपए, कच्ची बासमती 86 की कीमत 2500 रुपए से बढ़कर 2750 रुपए फी 40 किलोग्राम। चावल सीला कायनात की कीमत 5000 रुपए से बढ़कर 5400, सीला बासमती 86 की कीमत 2700 से बढ़कर 2900 रुपए फी 40 किलोग्राम हो गई। कीमतों में इजाफे पर दुकानदार और शहरी परेशान। को देख लें, आग लगी है, 340 रुपए किलो तक घी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा चीनी का रेट देखें तो चीनी जो है हुकूमत ने जो रेट दिया वो 90 रुपए रेट है, और इसके अलावा जो मार्केट में सेल हो रही है वो 110 रुपए 115 रुपए किलो सेल हो रही है। जब शॉपकीपर से कहा जाता है कि भाईजान 90 रुपए रेट है मार्केट में, तो जो हुकूमत ने दिया तो वो कहते हैं जी हमें तो खुद 103 रुपए 104 रुपए हमें होलसेल पे पड़ती है, तो हम कैसे दे दें 90 रुपए किलो। शहरियों का कहना था कि हुकूमत को अवाम की परवाह नहीं, गल्ला मंडी वाले जब दिल करता है कीमतें बढ़ा देते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। हुकूमत बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। उधर कमिश्नर डीडी खान डिवीजन सारा असलम ने तहसील कोट छुट्टा का दौरा किया है। सफाई, प्राइस चेकिंग और दीगर मामलात का जायजा लिया। ओवर चार्जिंग पर दुकानदार को जुर्माना कर दिया। कमिश्नर इरा गाजी खान डिवीजन सारा असलम ने तहसील सदर अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन काउंटर में बद इंतजामी पर बरहमी का इजहार किया। कमिश्नर ने मौजा कोट चुठा में डिजिटल गिरदावरी को भी चेक किया। 15 नवंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। उन्होंने बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कोट चुठा का भी दौरा किया और स्कूल के लॉन में पौधा भी लगाया। कमिश्नर सारा असलम ने THU अस्पताल कोट चुठा का भी अचानक दौरा किया। ख्वातीन से पर्ची फीस की वसूली बारे मालूमात हासिल की। उन्होंने माना अहमदानी में देही मरकज़ माल में भी अचानक दौरा किया। रजिस्ट्री, फर्द मलकियत और दीगर दस्तावेजात के अजरा के मामलात का भी जायजा लिया। लोधरा में महंगाई की बढ़ती शिकायत और प्राइस कंट्रोल कमेटी की नाकिस कारकर्दगी। डिप्टी कमिश्नर के इजलास में मजिस्ट्रेट्स पर चढ़ाई, काम ना करने वालों को जिला बदर करने का फैसला भी कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर शुआब अली ने इजलास में शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि दफातर में बैठकर फर्जी रिपोर्ट्स बनाने वाले प्राइस मजिस्ट्रेट लोधरा जिला से बाहर जाने की तैयारियां कर लें। इस जिले में काम करने वाले हर ऑफिसर और एहलकार की कदर की जाएगी। नाअहल किसी सूरत यहाँ नहीं टिक सकते। उन्होंने तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट को अहकाम दिए कि ग्राम फरोशों से किसी तौर रियायत ना की जाए, बल्कि उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाए। इजलास में डिप्टी कमिश्नर को बताया गया कि रवा माह के पहले हफ्ते में 157 ग्राम फरोशों को 3.5 लाख रुपए के नकद जुर्माने किए गए। 5 के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराए गए।
अभी आपको ब्रेकिंग दें, अकीदा खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ का तारीख साज दिन। मुल्तान किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम आशिकान रसूल से खचाखच भर गया। अमीर मरकजी आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत पाकिस्तान हाफिज नासरुद्दीन खाकवानी, सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमील, मरकजी अमीर अहले हदीस साजिद मीर, लियाकत बलोच, कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी, जुल्फ़कार अहमद, शाह वैस अहमद नूरानी और मौलाना अल्लाह समेत मुल्क भर से उलमाए कराम शिरकत कर रहे हैं। मजीद बात कर लेते हैं जुनैद अनवर से, जो इस वक्त किला कोहना कासिम बाग में मौजूद हैं। जुनैद, कहिएगा, जो विजुअल्स नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि एक जम्मे गफीर यहाँ पर उमड़ आया है। आज तारीख साज दिन है, बताइएगा तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक। बिल्कुल, इस वक्त हम किला कोहना कासिम बाग के अंदर ही मौजूद है, जहाँ पर इस टाइम जो है वो पंडाल जो है वो मुकम्मल तौर पर भर चुका है और इससे कई गुना जो बड़ी तादाद में लोग जो है वो स्टेडियम से बाहर भी मौजूद है। स्टेडियम के अंदर जो है वो तिल धरने की जगह मौजूद नहीं है, जबकि अभी तक कोई मरकजी कायदीन भी यहाँ पर नहीं पहुंचे। मरकजी कायदीन के पहुंचने के बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो मजीद जो है लोगों की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। इसका जो मरकजी तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है उसका आगाज हो चुका है, जिससे कुछ देर बाद जो है वो सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान, हजरत मौलाना तकी मोहम्मद उस्मानी, लियाकत बलोच, शाह वैस नूरानी, साजिद मीर, कारी हनीफ जलंधरी, मौलाना जुल्फ़कार अहमद और इसके साथ साथ मौलाना तारिक जमील समेत जो दीगर अहम जो शख्सियात हैं, मजहबी शख्सियात हैं, वो यहाँ पर खिताब करेंगी। बड़ी तादाद में जनूबी पंजाब भर से जो है वो कारकुनान यहाँ पर पहुँचे हैं उनके खिताब सुनने के लिए। इसके अंदर जो है ख़ास तौर के ऊपर खत्म नबूवत के हवाले से बात की जा रही है और हालिया हुकूमत की पॉलिसीज़ पर भी जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जबकि उम्मीद है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो 8 बजे तक जो है वो पंडाल में पहुँचेंगे, जबकि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान अपने मदरसे में मौजूद है, जहाँ से कुछ देर बाद वो जलसागाह के लिए रवाना होंगे। जब कारी हनीफ जलंधरी और हज़रत मौलाना तकी मोहम्मद उस्मानी समेत जो दीगर अहम रहनुमा है वो कुछ देर बाद जलसागाह में पहुँचेंगे। बात की जाए तो जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच भी तक मुल्तान पहुँच चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी मुल्तान है, हज़रत मौलाना तकी उस्मानी रात से मुल्तान में है, कारी हनीफ जलंधरी भी मुल्तान में है, जुल्फ़कार अहमद मौलाना जुल्फ़कार अहमद भी मुल्तान में है। जैसे तमाम कायदीन जो है वो बैक वक्त जो है वो स्टेज पर पहुँचेंगे, जहाँ पर उनका फकीरुल मिसाल जो है वो इस्तकबाल किया जाएगा। जैसे कि आप मनाजर देख रहे हैं कि स्टेडियम में तिल धरने की जगह मौजूद नहीं है। बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर कारकुनान पहुँचे हैं, आशिकाने रसूल पहुँचे हैं, जैसे स्टेडियम से बाहर भी यही तमाम तर मनाजर देखने में आ रहे हैं। तो बड़ी तादाद में जो है वो लोग पहुंचे, अकीदत अपना इजहार भी कर रहे हैं, नारे भी लगाए जा रहे हैं, खिताबात भी जो है वो सुने जा रहे हैं। कहिएगा, अगर बात कर ली जाए स्टेज की, 70 फीट लंबा ये स्टेज बनाया गया है। कौन कौन से जो आलमी रहनुमा हैं इस वक्त इस स्टेज पर मौजूद हैं, ताकि प्रोग्राम का जो है वो बाकायदा आगाज हो सके, कुछ मालूम पड़ सका? शेड्यूल क्या है? जुनैद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कहिएगा, 70 फीट लंबा स्टेज बनाया गया है, कौन कौन सी शख्सियात जो हैं इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं और क्या प्रोग्राम का आगाज हो गया है, कब तक चलेगा ये प्रोग्राम? जुनैद से हम राबता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा इवेंट हो रहा है तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत को लेकर। एक तारीख साज दिन है, ऐसे में स्पीकर्स और साउंड सिस्टम वहाँ पर नस्ब हैं और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे मुमकिन तौर पर जैमर्स भी हो सकते हैं और हो सकता है जुनैद को सुनने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा हो। बहरहाल ये किला कोहना कासिम बाग के ये मनाज़रा मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। किला कोहना कासिम बाग पर आशिकाने रसूल की एक बड़ी तादाद, एक जम्मे गफीर यहाँ पर उमड़ आया है और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में रबीउल अव्वल का चांद भी नजर आ गया है। बात कर ली जाए आलमी रहनुमाओं की तो अल अरबिया पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं मुफ्ती तकी उस्मानी वो वहाँ पर मौजूद हैं, मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पर मौजूद हैं, आलमी मुबल्लिग मौलाना तारिक जमील भी यहाँ पर मौजूद हैं और दीगर अहम जो शख्सियात हैं वो आज यहाँ पर खिताब करने वाली हैं। अभी आपको बताएं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर बहार 2021 में पेश किए गए प्रोग्राम्स के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के BA और BS प्रोग्राम्स के इम्तिहानात 18 अक्टूबर से शुरू होंगे।
आपको अपडेट कर रहे हैं। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर बहार 2021 में पेश किए गए प्रोग्राम्स के इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बीए और बीएस प्रोग्राम्स के इम्तहानात 18 अक्टूबर से शुरू होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर बहार 2021 में पेश किए गए प्रोग्राम्स के इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। इम्तहानात में 2 साला और 4 साला डिग्री के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होंगे। तलबा और तालिबात को रोल नंबर स्लिप्स एड्रेस पर भिजवा दी जाएंगी। महकमा ज़राअत ने IPM सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्तान में काश्तकारों का एतमाद बहाल हो गया। आइंदा साल IPM मॉडल पर मुकम्मल अमल दरामद का इरादा कर लिया गया है। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने रिपोर्ट पेश की। महकमा ज़राअत ने इमसाल IPM मॉडल पर तजुर्बाती बुनियादों पर तहकीक की रिपोर्ट जारी की है। जनूबी पंजाब के 11 अजला में IPM का तजर्बा किया गया। 41 तहसीलों में कपास और 120 नुमाइशी प्लाट लगाए गए हैं। IPM तजरी में जनूबी पंजाब के काश्तकारों ने ताउन किया। जनूबी पंजाब की तमाम तहसीलों में 1200 काश्तकारों का रैंडम सर्वे किया गया। सर्वे में 71 से 93% काश्तकारों ने IPM मॉडल पर एतमाद किया। काश्तकारों ने इस बात का इहादा किया कि आइंदा ज्यादा से ज्यादा रकबा काश्त करेंगे। कम लागत काश्त और ज्यादा मुनाफे से काश्तकारों का हौसला बढ़ा है। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में आलमी यौम कपास शानदार तरीके से मनाया गया। सेक्रेटरी ज़राअत की क़यादत में कॉटन रैली भी निकाली गई। वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च सूबाई वज़ीर ज़राअत ने वर्चुअल खिताब किए। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। के मौके पर सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील की क़यादत में रैली निकाली गई। शुरा ने कपास उगाओ मईशत बचाओ के नारे लगाए। खुशहाल किसान कपास उगाओ। बाद अज़ा CCRI मुल्तान में तकरीब का इनेकाद किया गया। वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च सैयद फ़खर इमाम और सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी ने वर्चुअल खिताब किया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब का कहना था कि जनूबी पंजाब के किसानों ने IPM प्लान कामयाब करार दे दिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी एक पोर्टल लॉन्च कर दिया। पोर्टल का एक स्पेसिफिक हिस्सा मैं ये खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं, वो मखसूस कर दिया एग्रीकल्चर के लिए कि आपको सीड पर कंप्लेंट है, आपको पेस्टिसाइड पर कंप्लेंट है, आपको फर्टिलाइजर पर कंप्लेंट्स है, आपको मेरे खिलाफ कंप्लेंट है, आप जाएं उस पोर्टल पे अपना दें और अगले 48 घंटों में हम उसको रिस्पॉन्ड करने के पाबंद हैं पूरे पाकिस्तान के जितने भी अफसरान हैं। तकरीब में डायरेक्टर CCRI डॉक्टर जाहिद महमूद, ज़राई यूनिवर्सिटी से डॉक्टर शफकत सईद, चेयरमैन सीड एसोसिएशन राना सलमान, कन्वीनियर FPCCI सुहेल तनवीर, सीनियर नायब सदर PCCC डॉक्टर मोहम्मद अली तारपुर समेत काश्तकारों और शोबा ज़राअत से वाबस्ता अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। तो जो हमारे आज हालात कुछ बुरे हुए हैं कि महंगाई ज़्यादा है और मसाइल हैं, उनकी वजह के हमने लोन लिए हुए हैं, उनके फिर इंटरेस्ट आ रहे होते हैं, वो पे करने हैं। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि सिर्फ $6 बिलियन लोन लिया गया है, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल हैं। इस मौके पर CCRI मुल्तान में रंगारंग स्टॉल्स भी लगाए गए जो हाज़रीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। वर्ल्ड कॉटन डे के मौके पर CCRI मुल्तान में मुनक़िद तकरीब में न सिर्फ माहिरीन ने कपास की काश्त के जदीद तकाज़ों के बारे में बताया, बल्कि किसानों ने भी अपने मसाइल बयान किए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान में मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में मौसमियाती तब्दीलियों और फसलों की पैदावार के हवाले से वेबिनार का इनेकाद किया गया। वेबिनार का मकसद मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी क्रॉप मॉडल्स के मुतालिक आगाही फ्राहम करना था। आपको बताते चलें कि ये ज़राई मौसमियाती तब्दीलियों के असरात और उनसे निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ज़राई यूनिवर्सिटी ने इससे मुतालिक जो है वो अपडेट किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रहीम खान इंतजामिया के नहली न्याजी कॉलोनी में 2 रोज़ कबल पड़ने वाले गड़े को पुर नहीं किया जा सका। शहरियों ने गड़े की निशानदेही के लिए टहनियां लगा दी। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। रहीमिया खान की न्याजी कॉलोनी में पड़ने वाले गड्ढे को 3 रोज बाद भी पुर नहीं किया जा सका। शहरियों ने राहगीरों को बचाने के लिए दरख्त की टहनियां लगा दी। अहले इलाका का कहना था कि 3 दिन से किसी भी महकमा का कोई भी ऑफिसर मौका पर नहीं आया। ये तीसरी दफा हो चुका है। पहले जो हमदर्दी टीम आई थी उन्होंने जो पीछे वाले गड्ढे हैं वो बंद कर दिए। ये आगे वाला जो है ये दोबारा फिर बन गया है।
मेहरबानी इनके हालों पर रहम किया जाए। हमने ये खुद ये सुबह बच्चों ने लगाया, इधर से दरख्त काट के ना यहाँ पे लगाए ताकि कोई बाहर से आए, गाड़ी वगैरह दूर से नजर आ जाए भी आगे खड्डा है। मेगा सीवर सिस्टम के बायस न्याजी कॉलोनी की गली नंबर 15 में 3 मरतबा क्राउन फेलियर के वाकयात हो चुके हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। एक जानिब ग्रीन पाकिस्तान के मंसूबा तो दूसरी जानिब दरख्तों की उखाड़ पे छाड़ जारी है। हुकूमती दावे रेत निकले। बहाउद्दीन ज़की यूनिवर्सिटी मुल्तान की इंतजामिया ने पुराने सायादार और तनावर दरख्त उखाड़ फेंके। तलबा और तालिबात को ऑक्सीजन फराहम करने वाले कई दरख्त बेदर्दी से काट दिए गए। बहाउद्दीन ज़की यूनिवर्सिटी मुल्तान वीरान होने लगी। यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई की जा रही है। हुकूमती दावों के बरक्स यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पुराने सायादार और तनावर दरख्त को उखाड़ फेंका है। तलबा और तालिबात को ऑक्सीजन फराहम करने वाले दरख्तों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम जारी है। सूखे दरख्त काटने के बहाने इंतजामिया ने सायादार दरख्तों को भी ना बख्शा। तलबा और तालिबात कहते हैं दरख्त काट कर ट्रॉलियां लोड करके बेची जा रही हैं। दरख्त कटने से यूनिवर्सिटी की खूबसूरती भी मुतासर हो रही है। अक्टूबर का महीना छाती के कैंसर से आगाही के लिए मनाया जाता है। इस हवाले से मुल्तान में लेडीज लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। हमें रिपोर्ट करेंगी सुहिरा तारिक। लेडीज लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम निजी कॉलेज में खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही देने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। खवातीन और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। ब्रेस्ट कैंसर की वजूहात, बरवक्त तशखीस और इलाज से मुतालिक आगाही दी गई। जो यंग हमारी जनरेशन है और इवन हमारी जो सीनियर जनरेशन है उनको भी जो है वो लाइफस्टाइल अगर हमारा ठीक है, खाने पीने के हमारे और ड्रेसिंग के, तो वी कैन अवॉइड कैंसर, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर। सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर मिनाल सदीकी का कहना था कि छाती के सुरतान से बचने के लिए खवातीन अपने वजन को कंट्रोल करें, खानों में तेल और घी का इस्तेमाल कम, ताज़ा फल सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें, रोजाना चहलकदमी और वर्जिश को अपना असूल बनाएं। बेसिकली हर किसी को अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स को, जैसे हमारे पास डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी के स्टूडेंट्स को इन्होंने आज अवेयर किया है, तो ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये आगे जाके अपने बाकी फेलोज को भी अवेयर करेंगे और लोगों में आगाही फैलेगी। सेमिनार के इख्तिताम पर ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही देने के लिए वॉक भी की गई। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। रोही स्टूडियो से फिल वक्त।